Namaste. Dear children, here I am back with the map skill of class 10th. Today we will do map skill of chapter 5 first. In chapter 5, minerals and energy resources, we have a little longer list of map skill. So first of all, we will do iron ore mines, coal mines and then oil fields. Okay beta, let's begin with iron ore mines. मयूरभंज. मयूरभंज देखो बेटा कितना आसान है मार्क करना. ये ओडिशा है. ओडिशा के इस कॉर्नर में मार्क कर दीजिए. दिस इज मयूरभंज. ओके, वेरी इजी लोकेशन. बस इस कॉर्नर में यहाँ पर मयूरभंज. देन सेकेंड इज दुर्ग. दुर्ग इज दिस इज छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ का सेंटर, बिल्कुल सेंटर ले लेंगे. यहाँ से महाराष्ट्र की जो लाइन आ रही है यहाँ पर हम इसको मार्क करेंगे दुर्ग. वेरी फेमस आयरन ओर माइन ऑफ छत्तीसगढ़. थर्ड इज बेलाडिला. बेलाडिला इसी के साउथ में, मतलब छत्तीसगढ़ में ही, छत्तीसगढ़ का साउथ. नेक्स्ट इज बेल्लारी. बेल्लारी इज इन कर्नाटका. कर्नाटका एंड आंध्रा बॉर्डर. एंड द लास्ट इज कुद्रेमुख माइंस. कुद्रेमुख जहां पर ये केरला स्टेट खत्म हो रही है उसके थोड़ा सा ऊपर कर्नाटका की स्टेट में दिस इज कुद्रेमुख. दिस इज कुद्रेमुख. सो दीज आर द 5 famous iron ore mines of India. First of all, what we have done here, we can write here the name of the map also, iron ore mines. So iron ore mines we have to mark only 5 iron ore mines. बहुत आसान लोकेशन है. मयूरभंज बिल्कुल ओडिशा के कॉर्नर में, दुर्ग छत्तीसगढ़ के सेंटर में, बेलाडिला छत्तीसगढ़ के साउथ में, बेल्लारी द बॉर्डर ऑफ कर्नाटका और कुद्रेमुख इज जस्ट अबव द केरला इन कर्नाटका. ओके, so beta our next map skill of chapter 5 is coal mines. Only 4 coal mines we have to mark: Raniganj, Bokaro, Talcher and Naveli. Raniganj in West Bengal. You can see this. इसके अंदर बेटा स्टेट्स का ध्यान रखना. थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा लेकिन ये नहीं कि वेस्ट बंगाल की माइन झारखंड में पहुंचा दे. तो दिस इज रानीगंज. रानीगंज इन वेस्ट बंगाल. देन बोकारो. बोकारो इज इन झारखंड. इधर रानीगंज मार्क किया, इस तरफ इसके झारखंड की साइड में ये जो आपको हम्प दिख रहा है इसके ऊपर, दिस इज बोकारो. वेरी रिच इन कोल रिजर्व्स. नेक्स्ट इज तलचर. इससे पहले वाले मैप में आपने मयूरभंज मार्क किया था ओडिशा के कॉर्नर में. इधर उसी के बिल्कुल पास में, ऑलमोस्ट सेम प्लेस, मयूरभंज यहां मार्क किया था. तलचर इन ओडिशा. Last is Naveli. Naveli is a very famous coal mine of Tamil Nadu. It is famous for its lignite coal, which is also known as brown coal. तो आपको ये इंडिया का कर्व दिखाई दे रहा है अंदर की साइड में. इस जगह पर हम मार्क करेंगे नवेली coal mines of Tamil Nadu. So these are 4 famous coal mines which you have to locate on the map of India. Next is beta oil fields. We have to mark 6 oil fields on the map of India. These 6 oil fields you will remember in the groups of 2. 2 Digboi and Naharkatia in Assam, Mumbai High in Bassein in Arabian Sea, Kalol and Ankleshwar in Gujarat. So let's begin with Digboi and Naharkatia. This is Assam, extreme east of Assam. यहाँ पर आप 2 मार्क कर दीजिए. जो नीचे वाला ये आप लिखेंगे Digboi and this is Naharkatia. Mumbai High and Bassein. This is Mumbai. Very close to Mumbai is Mumbai High. And to its north in the Arabian Sea is Bassein. Last is Kalol and Ankleshwar in Gujarat. Kalol, you can see this bend here. This is Ankleshwar and to its north
here it is Kalol. So beta, these are the 6 oil fields you have to mark on the map of India. 2 in Assam, 2 in Gujarat and 2 in offshore Arabian Sea region. Okay beta, next in chapter 5 are thermal power plants. You know what is the meaning of thermal power plants? The power plants which generate energy by using coal and petroleum. So thermal power plants we have to mark only 3. Namrup, Singrauli and Ramagundam. Very easy to mark, very easy, believe me. Namrup, अभी हमने एक ऑयल फील्ड मार्क किया था बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्ट में, रिमेंबर, नहर कटिया, बिल्कुल वहीं पर उसी ऑयल को लेकर बनता है यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट. दिस इज नामरूप इन असम, एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ असम इज नामरूप. सिंगरौली, सिंगरौली दिस इज मध्य प्रदेश का. ये जो अंदर जा रहा है हम इसके अंदर, बिल्कुल इजी, इसके अंदर मार्क करना है. दिस इज सिंगरौली. After Singrauli, the third and the last is Ramagundam. Ramagundam, तेलंगाना. तेलंगाना में ये ऊपर से आपको दिख रही है, महाराष्ट्र की लाइन आ रही है, बाउंड्री जहाँ पर आ रही है, बिल्कुल उसी के नीचे जहाँ से महाराष्ट्र टच कर रहा है तेलंगाना को, उसके नीचे यहाँ पर. दिस इज Ramagundam thermal power plant. So these are 3 thermal power plants of India which you have to mark on the map of India. So I hope beta it is clear to you. Namrup in the extreme east, Assam. Singrauli again the east of Madhya Pradesh, and this is Ramagundam. It is also almost east of Telangana. Okay beta, now the last map skill of chapter 5 is nuclear power plants of India. You have to mark only 4 nuclear power plants: Narora, Kakrapara, Tarapur and Kalpakkam. Narora is in UP. This is Uttar Pradesh. ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, नेपाल का कॉर्नर. ये आपको इसका सेंटर लेना है. इसका सेंटर जो भी लेंगे वो होगा नरोरा. नरोरा thermal power plant of India, the oldest power nuclear power plant of India. So it is in UP. काकरापारा, गुजरात. काकरापारा गुजरात, आपने यहाँ पर अंकलेश्वर मार्क किया था इफ यू रिमेम्बर, उसी जगह पर यहाँ पर है हमारा काकरापारा. नेक्स्ट इज तारापुर. तारापुर इन महाराष्ट्र, एंड द लास्ट इज Kalpakkam in Tamil Nadu, Chennai में. So these are the 4 nuclear power plants of India. Narora in UP, Kakrapara in Gujarat, Tarapur in Maharashtra and Kalpakkam is in Tamil Nadu. So with this we have completed the map skill of chapter 5. I hope it is easy for you to mark because you have to relate, you have to find the place, कहाँ से किसके रिलेशन में मुझे ये पॉइंट मार्क करना है. जैसे मैंने आपको बताया नरोरा, नरोरा कैसे मार्क करेंगे, यूपी के ये लाइन के यहाँ पर आप मिडिल पॉइंट ढूंढेंगे. तारापुर इज वेरी सिंपल ऑन द कोस्ट, काकरापारा अगेन वेरी सिंपल ऑन द कोस्ट, एंड कलपक्कम इज दिस इज वेयर द इंडियाज boundary is little coming out. This is Chennai where the Kalpakkam is. So this is all about map skill of chapter 5. Okay beta, now let's move to map skill of chapter 6, manufacturing industries. So first of all, cotton textile industries. India has been famous for cotton. Its cotton is in great demand in other countries, and we are equally famous for cotton textile also. So 5 centers of cotton textiles, one by one we will take. Number 1 is Mumbai. So what we are showing, first we have to write here cotton textile industries. Mumbai. Mumbai is
very easy to mark in the coast. यहाँ पर थोड़ी सी आपको irregular coastline मिलेगी, टेढ़ी मेढ़ी. Irregular means uneven. वो हमारा मुंबई है. मुंबई आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए याद करना है बेटा, तो यहाँ पर हम याद कर रहे हैं उसको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए. नंबर 2 इज इंदौर. वेयर इज इंदौर? इज इन मध्य प्रदेश. इंदौर इज हियर. इसका देखो यहाँ पर बहुत इजी लोकेशन है, नहीं डिफिकल्ट बिल्कुल भी. इंदौर. थर्ड इज सूरत. सूरत हमने बहुत सारी जगह बार मार्क किया है. इस जगह को हमने ये दिस इज सूरत, कोस्ट में है, बहुत इजी है, गुजरात के बिल्कुल कोस्ट में. देन इज कानपुर. कानपुर इज दिस यूपी. यूपी के थोड़ा ईस्ट की तरफ आता है, नॉट कंप्लीटली ईस्ट. दिस इज कानपुर. एंड लास्ट इज कोयम्बटूर इन द साउथ. Coimbatore is in Tamil Nadu, but on the border of Kerala and Tamil Nadu. Here it is Coimbatore, very famous for its cotton. So these are the 5 centers of cotton textile. Kanpur in UP, Surat in Gujarat, Indore in Madhya Pradesh, Mumbai in Maharashtra, and Coimbatore in Tamil Nadu. Okay beta, next is iron and steel plants. Durgapur, Bokaro, Jamshedpur, Bhilai, Vijayanagar and Salem. Durgapur in West Bengal. वेस्ट बंगाल जहाँ पर हमने रानीगंज मार्क किया था बिल्कुल वहीं पर. दिस इज दुर्गापुर, फेमस आयरन एंड स्टील प्लांट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज बोकारो. बोकारो हमने कोल फील्ड के लिए मार्क किया था और उसी कोल फील्ड के पास ही है हमारा आयरन एंड स्टील प्लांट. दिस इज बोकारो इन झारखंड. झारखंड के ही साउथ में this is our oldest, only one private owned iron and steel plant, टाटाज का, जिसे हम कहते हैं जमशेदपुर. केवल यही प्लांट है जो किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के पास है, बाकी सब गवर्नमेंट के अंडर है. जमशेदपुर झारखंड के साउथ में. नेक्स्ट इज भिलाई. भिलाई इन छत्तीसगढ़, जहां आपने दुर्ग मार्क किया था बिल्कुल वहीं पर ही आप यहां लिखेंगे भिलाई. भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट. ओके. नेक्स्ट इज विजयनगर. विजयनगर इज इन कर्नाटका, यहां पर जहां पर हमने बेल्लारी मार्क किया था. एंड लास्ट इज सेलम इन तमिलनाडु. अगर बेटा आप आयरन और स्टील प्लांट्स को, जो आपने कोल और आयरन और माइंस की हैं, उसको पैरेलली कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे जहां जहां पर हमारी कोल और आयरन माइंस थी वहीं वहीं पर आयरन और स्टील प्लांट्स हैं. बिकॉज फॉर आयरन एंड स्टील प्लांट्स द 2 मेन रॉ मटेरियल आर आयरन ओर एंड कोल. तो जहां जहां पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वहीं वहीं पर हम आयरन और स्टील प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख रहे हैं. ठीक है. दुर्गापुर इज इन वेस्ट बंगाल. बोकारो झारखंड के नॉर्थ में बोकारो और झारखंड के साउथ में जमशेदपुर. भिलाई बिल्कुल छत्तीसगढ़ के सेंटर में. विजयनगर हमारा कर्नाटका और सेलम तमिलनाडु. सो दीज आर अवर 6 iron and steel plants of India. And the third and last map skill of chapter 6 is software technology park, IT parks, information and communication centers, ICT, software technology. So India is a hub of software technology parks. We are coming up as a giant producer of software in the world. So the 8 places we have to mark on the map, very easy. Number 8 है, लेकिन all are very big cities, very easy to locate on the map. नोएडा, आपको दिल्ली मालूम है. where is दिल्ली? दिल्ली का यूपी की साइड, एनसीआर एरिया. दिल्ली ये है तो दिल्ली ये यूपी है, यहाँ हरियाणा है. तो यूपी की साइड, दिल्ली के बिल्कुल इधर यूपी की साइड में यहाँ हम मार्क करेंगे नोएडा. नोएडा एक बहुत अपकमिंग हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सेंटर बनता जा रहा है. गांधीनगर, वेरी इजी. दिस बेंड यू नो,
एंड इसी के बिल्कुल ऊपर दिस इज गांधीनगर, कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात. नेक्स्ट आफ्टर गांधीनगर इज मुंबई. मुंबई अभी मार्क किया था हमने. कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई. नेक्स्ट इज पुणे. वेरी क्लोज टू मुंबई इज पुणे. Next is Hyderabad, capital, again capital city. Hyderabad is here, the capital of Telangana. Next is Bengaluru. Bengaluru is the most important center of software. More than 5,000 MNCs have set up their units in Bengaluru. It is known as electronic capital of India also. नेक्स्ट इज चेन्नई. चेन्नई बिल्कुल इधर मार्क करेंगे हम. दिस इज चेन्नई. एंड द लास्ट इज थिरुवनंतपुरम, कैपिटल ऑफ केरला. बिल्कुल साउथ में. स्पेलिंग देखो कैसे याद करते हैं. थिरु, THIRU, थिरु. वन, VAN, वन. अन, AN, अन. था, पुरम. स्पेलिंग लंबी है, लेकिन इफ यू विल ब्रेक द वर्ड एंड यू विल रिमेंबर देन इट इज वेरी इजी. थिरुवनंतपुरम. थिरुवनंतपुरम, द कैपिटल ऑफ केरला. सो दीज आर 8 software technology parks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 software technology parks of India, which you have to locate on the map of India. Okay beta, so I hope you can now easily do the map skill of chapter 5 and 6. Okay, so I will conclude my video with this map skill and the last map skill of chapter 7 and history also. The map skill of history, only 2 maps are there, so I will take in this only, so that your entire map skill will complete. Okay, so thank you so much. Have a wonderful day.